Hi guys, welcome. How are you all doing? Hello, ma'am. Hello. We just Hello, met ma'am. like 2 minutes ago in the class. Okay. So मैम guys, एक्चुअली वो जूम का लिंक जो है ना उसका पता नहीं था। आज ही समझ में आया कि मतलब जब आपने समझाया ना तभी समझ में आया कि ये लोग क्या टेस्ट दे रहे हैं, क्या मतलब 10 upon 10। अब आ गया। अब कल तुम भी एकदम चौके छक्के मार देना, ठीक है? हाँ देखते। मैम ये मोहम्मद जैद कौन है? हर दिन उसको मतलब रैंक मिलता है वो मंडी मैं क्विज में। बताती हूँ। मोहम्मद जैद जो है ना हमारी मेंटी क्विज के पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक है? तो उसमें भी रोज फर्स्ट आते थे और अपनी परंपरा बरकरार रख रहे हैं और अभी भी फर्स्ट आ रहे हैं, ठीक है? वो अनुषा हमेशा रहते। वो हाँ इट्स लाइक यूनिवर्सल कंपटीशन है तुम लोगों का, तो ये रेडी रखना, ठीक है? Acha, now why I've come here for now, I will not be taking this session, guys. I have someone from my team. I would like to introduce him. He's Khushwant Pawar. Okay, so he's also, there are two reasons why, he is taking today's session. Firstly, obviously, we wanted that he should get to interact with you and you guys should get to interact with him. Amazing voice, ठीक है? Amazing personality, and he used to record the Hindi newspaper analysis earlier, and he is a very integral part of the current affairs team. Yeah, so there are a lot of people who already know you. Fan base है खुशवंत आपका यहाँ में पहले से। मैंने Okay. सर का वॉइस सुना है हिंदी में। अब सर को एकदम आप देखेंगे भी ना तो यू विल गेट टू नो दैट ही इज रियली एन ऑसम पर्सन। एंड फर्दर गाइस, एक इमोशनल कनेक्ट भी है। देखो, खुशवंत सर जो हैं वो खुद एमपी से हैं, तो भाई बनता है कि जब एमपी की कोई कंपेंडियम है, एमपी का सेशन है, तो खुशवंत सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कुछ नहीं, शिवा काफी टाइम से इंसिस्ट कर रही थी कि अब वॉइस सुना दिया है, अब फेस भी सबको दिखा दो साथ में। एक्चुअली कि भाई सब आपकी वॉइस पे जानते हैं, बट दे शुड आल्सो नो लाइक व्हाट इज द पर्सनालिटी ऑल अबाउट, ठीक है? एंड आई एम रियली श्योर गाइस यू आर गोइंग टू लव हिम, लव दिस, यू आर गोइंग टू लव दिस सेशन. नाउ जस्ट गो थ्रू द चैट बॉक्स एवरीवन. नाउ फॉर दोज हु यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन मेंटी क्विज, आपको पहले से पता है, ठीक है? जिनको नहीं पता गाइस, देयर इज दिस लिंक, प्लीज चेक, आई हैव शेयर्ड इन द चैट बॉक्स. There is a link. Okay, just click on this link, and if it asks for you a passcode, this is the passcode 2369402. It's there in the chat box. Please look into the chat box. Join this link and enter this passcode. So basically what we are going to do is, guys, that instead of having the quiz just on the slides and everything where you will be answering in the chat box, it is rather going to be a competition. So it's going to be a live quiz competition. अब ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब जीत जाओगे तो मैं ट्रॉफी दे दूंगी, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, बट जीत जाओगे तो सीखने मिलेगा, पार्टिसिपेट करोगे तो भी मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है? बट द पर्पस हियर इज गाइस, you click on this link so that you will be there in the live quiz. By live quiz we mean that on your screens, whatever you are using, your laptop, phone, whatever you are using, on your screen every question one by one will be displayed. You will get 20 seconds to read the question, the options, and answer it, and quickly you have to answer. The faster you will answer, the more you will score. Okay, so please just check. I am once again sharing, I'll be consistently sharing it because new participants are joining every now and then. Please check the chat box, click on the link. Kushwan, till then what you can do is that you can share your screen so that you will be able to understand that how many are joining. Okay, so because only once you are presenting it, then they will be able to join the quiz. Okay, so everyone, please make sure that you're clicking on this link and that you are there. All right, and I'll be there throughout with you, but Kushwan will be taking you forward with the quiz. Okay. Ma'am, So, I clicked on the link. It's not asking for any password. Up now it will. Kushwan, can you please just present on the thing? Then they'll be able to join. Yes. So Anupam is wishing all of you the very best, guys. Anupam is also the person who prepares the base of our newspaper analysis. He's a very important part of my team, and he's also saying that you'll all learn. May you all learn something crucial today. Now, everyone, you will get the option. Now, see if it's working fine with you or not. All right, and to precisely introduce himself, Kushwant will be doing that on his own, and Kushwant also please just get through the students through the pattern of the quiz as well. Okay? हाँ जी, हो रहा है? No ma'am. नहीं हो रहा है? No, ma'am. नहीं हो रहा है? अच्छा रुको भाई. Ma'am, it's showing about me, but not asking for the password. अच्छा, fine. It'll not. Maybe just the link is enough. Okay? It's showing you this screen, right? Yes, ma'am. Apart from the Zoom, guys. It has to be apart from the Zoom. Yes, ma'am. ठीक है. So it's working fine. Okay? You don't need the passcode then. Just click on this link. I think that will be enough for you. Okay?
please give me a thumbs up or give me a hand raise if it's working fine for everyone, because here I would like to see all the participants. So, Khushwant, could you please tell me, you just, okay, it's going 13 participants joined. ठीक है, they're joining. Guys, join करो धीरे धीरे, ठीक है? Good. So what we can do is, Khushwant, you can start with your introduction. In the next slide, you will be able to see as to how many have actually joined the quiz. Okay? All right, guys. I'll be on a mute. I'll shut off my camera. I'm absent now. Let's hand it over to Khushwant Pawar. All the best to all of you guys. You're going to nail it. Good luck. Yeah. Hello everyone. I'm Khushwant Pawar. So I'm the integral part of this current affairs team. Right now, I'm working as a practicing advocate in Bombay High Court. With that, I previously worked with PNB Housing, and I graduated from Government Law College in year 2018. So let's move to our first slide. Can everyone please mute yourself? Okay, sir. People who are not yet joined Menti Quiz, please click on the link. It is mentioned in the chat box. I can see 42 participants joined in the Zoom, but only like 8-10 people yet joined our Menti Quiz. Please click on that link. वो लिंक पे क्लिक करने के बाद में ही आप क्विज में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है? खुशवंत, आप एक बार थीम्स समझा देंगे तो वी कैन मूव फर्दर. जैसे ही आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, तब आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिख जाएगा. ओके फाइन. सो बेसिकली आज हम अलग अलग थीम्स की बात करेंगे. सबसे पहले हमारा ज्योग्राफी होगा. ज्योग्राफी में मेन जो है वो हम एमपी का ज्योग्राफी कवर करेंगे. उसके अलावा भी एमपी जुडिशरी में एमपी के ज्योग्राफी के अलावा भी वर्ल्ड और इवन नेशनल लेवल का भी हमारा ज्योग्राफी आता है, बट मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्शन है ये एमपी से रिलेटेड ही ज्योग्राफी होता है. उसके बाद में हम हिस्ट्री से डील करेंगे और हमारा एक और सेक्शन जो होगा ये स्टैटिक लीगल जीके एंड लास्ट पार्ट इज साइंस. सो लेट्स स्टार्ट. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yeah, still half of the people joined it. मुझे पार्टिसिपेंट्स 41 दिख रहे हैं जूम पे. सिर्फ अभी तक 26 ने ज्वाइन किया है. सो रिमेनिंग पीपल प्लीज ज्वाइन. जो मेंटी क्विज का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में है. बिना मेंटी क्विज ज्वाइन करे हुए आप क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाएंगे. तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेंटी क्विज जो है, जो लिंक कमेंट बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके मेंटी क्विज ज्वाइन करो. एट 10 पीपल ने ज्वाइन करा है. 18 पीपल रह गए तो विल मूव. अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, लास्ट कुछ सेकंड्स रुकते हैं जब तक सब ज्वाइन नहीं कर लेते हैं. आपको कमेंट बॉक्स में मेंटी क्विज का लिंक दिख रहा होगा, तो इससे क्लिक करो आप. Very good, guys. We already have 31 on Menti quiz and 7 more to go. 7 or as I am also there, so I click 4-5 more to go. So I've once again shared the link, guys. Please look into the chat box. Just click on this link and you will be directed to this. Simply the question will come on your screens. Choose the answer. You're done for the day. That's all you have to do. Okay. So I think we can have Khushwant, we can just, I guess, start for now. Yeah, we can start and then. Yes. So can you please help me with my query in the chat? Oh, okay. Wait, I'll do that, Vibhuti. Okay. Okay. So our first question is this: which of this state share their boundary with Madhya Pradesh, with MP? So option 1 is Chhattisgarh. Option B Uttar Pradesh. Option C Rajasthan. या option D all of them. इनमें से कौन से states मध्य प्रदेश की बाउंड्री टच करते हैं? So 25 people said all of them.
एंड लाइक वेरी फ्यू पीपल जो है जिन्होंने गलत आंसर दिया। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एमपी का मैप देखते हैं। सो अगर हम एमपी का मैप देखें तो यहाँ पे एमपी जो अर्सवाइल छत्तीसगढ़ भी इसका पार्ट होता था, 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग स्टेट बना। उसके बाद में एमपी को छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन सब की बाउंड्री टच करती है। तो जो हमारे सारे ऑप्शन थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये और उत्तर प्रदेश, ये इनकी बाउंड्री भी आप देख रहे हैं टच करते हैं। उसके अलावा गुजरात का भी छोटा सा पार्ट जो है, जो मध्य प्रदेश का झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये भी गुजरात के कुछ पार्ट को, कुछ बाउंड्री को टच करते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। So next question is which of the following national park is located in मध्य प्रदेश? तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है? आपका ऑप्शन 1 है पन्ना नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है मानस नेशनल पार्क और ऑप्शन डी जो है ये है पेरियार नेशनल पार्क। ओके, वेरी गुड। तो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो हमारे करेक्ट आंसर ही दे रहे हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। जो पन्ना नेशनल पार्क है ये एमपी में है। उसके अलावा गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है। जैसे गुजरात में गिर आपको पता होगा, तो वहां पे ये नेशनल पार्क। उसके अलावा जो मानस नेशनल पार्क है ये आता है असम में। और पेरियार नेशनल पार्क जो है, पेरियार जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, तो इनके नाम पे ये नेशनल पार्क रखा हुआ है और ये है केरला में। पेरियार जो सोशल रिफॉर्मर थे, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है, बट इनके नाम का जो नेशनल पार्क है ये है केरला में। क्वेश्चन की ओर आते हैं। So Panna National Park is famous for which animal? तो कौन से इनमें से एनिमल है जिसके लिए पन्ना नेशनल पार्क जो है ये फेमस है? आपका ऑप्शन ए है टाइगर, ऑप्शन बी लायन, ऑप्शन सी एलिफेंट्स, ऑप्शन डी चीतास। या सो करेक्ट ऑप्शन है टाइगर। पन्ना नेशनल पार्क जो है ये मेनली इसे एज अ वन ऑफ द टाइगर रिजर्व भी है ये इंडिया का। जैसे इंडिया में कुछ रिजर्व्स को, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनको टाइगर रिजर्व का टैग मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है टाइगर का वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है और उनके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर बेसिकली इनको टैग मिला है जो टाइगर रिजर्व्स का। सो बेसिकली पन्ना टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट जो है ये है पन्ना नेशनल पार्क। Which project was supposed to be implemented in Puno National Park? आपका ऑप्शन ए है एशियाटिक लायन रिप्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है चीता रिप्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी जो है ये है बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो कुनो नेशनल पार्क जो है इसमें दो इन प्रोजेक्ट्स में से कौन सा प्रोजेक्ट है आपको ये बताना है। सो ये एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था ऑब्वियसली। एशियाटिक लायन रिप्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले आया था ये कुनो नेशनल पार्क में। उसके बाद में आफ्टर फ्यू इयर्स जो चीता पॉपुलेशन भी था, कि जो चीतों की पॉपुलेशन होती है उनको प्रिजर्व करने के लिए एक और प्रोजेक्ट आता है इसी कुनो नेशनल पार्क में। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी।
So next question is which dam is constructed on नर्मदा? नर्मदा रिवर में इनमें से कौन सा डैम जो है वो कंस्ट्रक्टेड है? आपको ऑप्शन ए है भाखरा नागल डैम, ऑप्शन बी है इंदिरा सागर डैम, ऑप्शन सी है नागार्जुन सागर डैम और ऑप्शन डी जो है ये है हीराकुड डैम। ओके, सो करेक्ट आंसर है इसका इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम जो है इसको पुनासा डैम के नाम से भी जाना जाता है। पुनासा ये एक प्लेस है खंडवा में, तो इस पुनासा प्लेस के पास में ही इस डैम को बनाया था। तो सबसे पहले इसका नाम पुनासा डैम हुआ करता था, फिर इवेंचुअली इसको रीनेम करके इंदिरा सागर डैम किया है। और अपने आप में एमपी का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट ये डैम हो जाता है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी जो है वो इसी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पुनासा के पास में है, जहां से एक मेजॉरिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो भी एमपी में होता है। विच इज द हाइएस्ट पॉइंट इन मध्य प्रदेश? तो अब आपको बताना है कि एमपी का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। ऑप्शन ए है धूपगढ़, ऑप्शन बी है गुरु शिखर, ऑप्शन सी है कलसुबाई या ऑप्शन डी भैलाडीला हिल्स। सो ये वन ऑफ द बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो धूपगढ़ जो है ये पचमढ़ी पचमढ़ी जो कि एक इकलौता हिल स्टेशन है एमपी में। तो धूपगढ़ इस पचमढ़ी में ही यहाँ पर है। उसके अलावा अगर हम गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर जो है ये अरावली का हाईएस्ट पॉइंट है, और अरावली का जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है ये आता है राजस्थान में। तो राजस्थान का हाईएस्ट पॉइंट गुरु शिखर है। वही कलसुबाई की बात करें तो कलसुबाई महाराष्ट्र में है, और बैलाडीला की अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पॉइंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो धूपगढ़ अगर इसका हम हाईएस्ट जो पॉइंट है एमपी का, इसकी हाइट अगर हम देखें तो ये है 4429, यहाँ पे 429 इसकी हाइट यहाँ पर है। मध्य प्रदेश इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, तो इनमें से किस चीज में एमपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? ऑप्शन ए है मिका, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है रॉक सॉल्ट या ऑप्शन डी लाइमस्टोन। या करेक्ट आंसर इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन अभी अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि लाइमस्टोन में एमपी हाईएस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो बन गया है। उसके बाद में जो सेकंड रैंक पे आता है ये राजस्थान है। अभी भी अगर आप कुछ जगहों पर देखोगे या अगर आप सर्च करोगे तो आपको राजस्थान जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लाइमस्टोन का दिखेगा। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे और कुछ ऐसी प्लेसेस यहाँ पर मिली है एमपी में जहाँ पे लाइमस्टोन जो है वो काफी बड़ी मात्रा में है। तो उसके चलते हुए अभी अगर हम देखें तो लाइमस्टोन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एमपी बन गया है। सो मसगावन डायमंड माइन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मसगावन डायमंड माइन जो है, जो हीरे की खदान है, इनमें से किस स्टेट में है? आपका ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। जो पन्ना डायमंड माइन है, ये मसगावन जो डायमंड माइन है ये एक्चुअली पन्ना में लोकेटेड है। पन्ना के नाम से हम जानते हैं कि पन्ना में हीरे की खदान है, लेकिन पन्ना में भी जो स्पेसिफिक माइन जो है जहां पर डायमंड मिलता है ये है मसगावन डायमंड माइन। तो इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश है। तो अगर हम देखते हैं मैप में तो एमपी का नॉर्थ पार्ट जो है बेसिकली बुंदेलखंड जो यहाँ पर पार्ट है
तो पन्ना में मझगांव करके ये डायमंड माइन है, जैसे आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। पन्ना एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, बुंदेलखंड का पार्ट है। बुंदेलखंड एक ऐसा रीजन है इंडिया का, अगर हम देखें तो बैकवर्ड एरियाज में बुंदेलखंड एक वन ऑफ द यहाँ पर रीजन है, बिकॉज यहाँ पे रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज खासकर वाटर जो है काफी कम है। तो बुंदेलखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश में आते हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट एमपी में आते हैं। केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, हाल ही में ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव हो गया है, इसका काम भी स्टार्ट हो गया है। तो उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के बाद में जो बुंदेलखंड है वो केवल अपने हीरो के कारण ही नहीं, वो अपने रिसोर्सेज के कारण, पानी के कारण और यहाँ के एग्रीकल्चर के कारण भी यहाँ पे फेमस हो। So Bargi Dam, the longest dam in Madhya Pradesh, is located on which river? बारगी डैम इनमें से कौन सी रिवर पे बना हुआ है, आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा, या ऑप्शन डी कीन। सो करेक्ट आंसर है नर्मदा। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है, 17 आउट ऑफ 34 लोगों ने नर्मदा करेक्ट आंसर है। इस पे बारगी डैम जो है बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। How many major dams are situated on river नर्मदा? नर्मदा नदी पे मेजर डैम्स कितने हैं? A 25, B 30, ऑप्शन डी 45 या ऑप्शन डी 10? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो मेजर डैम्स की बात करी है। नर्मदा रिवर जो कि एमपी से स्टार्ट होती है और गुजरात में इसका एंड होता है। तो यहाँ पर नर्मदा रिवर अपने आप में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रिवर होती है, एमपी के लिए भी और उसके साथ में गुजरात के लिए भी। माइनर डैम्स की बात करें तो यहाँ पर हमें सैकड़ों माइनर डैम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम मेजर डैम्स की बात करें तो ये टोटल 30 मेजर डैम्स जो है नर्मदा रिवर पे बने हुए हैं। ओंकारेश्वर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ओंकारेश्वर डैम जो है ये इनमें से किस रिवर पर है? आपको ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा या ऑप्शन डी कीन। या बिल्कुल करेक्ट। तो जिन्हें एमपी का ज्योग्राफी अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी पता हो तो इससे इजीली उनको आंसर यहाँ पर आ गया होगा। ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर डैम बना हुआ है, उसके अलावा ओंकारेश्वर एक और चीज के लिए फेमस है। 12 जो ज्योतिर्लिंग है, जो शिव ज्योतिर्लिंग है 12, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ये ओंकारेश्वर में है। तो ओंकारेश्वर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी एमपी का है। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे मैंने बताया, अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा जो है ये शुरू होती है अमरकंटक से। एक काफी लाइफलाइन की तरह देखा जाता है एमपी में नर्मदा को। आज अगर एमपी वीट बाउल ऑफ द नेशन अगर है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नर्मदा का बहुत बड़ा रोल है। कंट्री में जिस तरीके से इंपॉर्टेंस गंगा का देखा जाता है, उसी तरह एमपी में इंपॉर्टेंस नर्मदा का है। उसके अलावा अगर हम रिवर्स देखें और कुछ मेन रिवर्स की बात करें तो तापी या ताप्ती, एमपी में इसे ताप्ती बोला जाता है, वही गुजरात और महाराष्ट्र में इसको तापी के नाम से भी जाना जाता है। तो तापी रिवर जो है ये भी एमपी से शुरू होती है, उसके बाद में महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए ये अरब सागर में चली जाती है। उसके अलावा और इम्पोर्टेंट अगर रिवर्स की बात करें तो सोन रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके अलावा जैसे मैंने बेतवा की बात करी तो बेतवा रिवर भी इंपॉर्टेंट है, परबती और चंबल रिवर। तो ये कुछ मेजॉरिटी ऑफ रिवर है जो कि एमपी के यहाँ पर डेवलपमेंट में एज ए रिसोर्सेस में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है।
bio dash biosphere reserve is shared between छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन दोनों ही राज्यों के बीच में ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये बटा हुआ है। तो आपका ऑप्शन है ए है पचमढ़ी बायो रिजर्व, ऑप्शन बी है पन्ना बायो रिजर्व, ऑप्शन डी अचन कमर अमरकंटक बायो रिजर्व, या इस ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। या सो करेक्ट आंसर जो है ये है ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं, मैप में इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों पहले एक ही स्टेट हुआ करता था। फर्स्ट नंबर 2000 में दोनों अलग अलग स्टेट बनते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, एमपी का अनूपपुर और डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, तो इनके बीच में जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं डार्क ग्रीन एंड ग्रीन, ये पोर्शन जो है ये है अचानकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके साथ में यहाँ पर अमरकंटक बायो रिजर्व। ये दोनों ही जगह, ये दोनों ही प्रदेश जो है, दोनों ही जो स्टेट्स हैं, इन दोनों के बीच में बटा हुआ है। और जो 3 डिस्ट्रिक्ट इससे कवर होती है वो है छत्तीसगढ़ की बिलासपुर, अनूपपुर एमपी की, और डिंडोरी भी एमपी की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतमाला हिल रेंज जो है इनमें से किस स्टेट में है? आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का बहुत सोच समझ के आंसर देना। या तो इसलिए मैंने बोला था इस क्वेश्चन से थोड़ा बच के रहना, बहुत सोच समझ के आंसर देना। सतमाला हिल रेंज जो है ये इनमें से किसी भी स्टेट में नहीं आती है, तो किस स्टेट में आती है वो भी हम जान लेते हैं। तो सतमाला रेंज जो है ये आती है एक्चुअली महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जो कि एमपी का नीबरिंग स्टेट है। एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी के जो कुछ मेन अगर हमें रेंज देखने को मिलती है तो एक है विंध्य रेंज और दूसरी सतपुरा रेंज। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर एमपी में और अलग अलग हिल्स है। अगर हम साउथ से चालू करें तो असलगढ़ हिल्स, वही बड़वानी डिस्ट्रिक्ट के पास में यहाँ पे बड़वानी हिल्स, वही झाबुआ वाले एरिया में मटवार हिल्स, और इसके अलावा एक कालीभीत हिल्स भी काफी फेमस है। पीलीभीत जो कि एक जगह है यूपी में, हमारे यहाँ पे एमपी में कालीभीत हिल्स है उनके नाम से। उसके अलावा यहाँ पर जो महादेव हिल्स है ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इसकी स्लाइड जो है वो भी आपके साथ में शेयर कर दी जाएंगी। तो ये जो मेन हिल्स है इनके भी नाम आप जरूर देख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड, हिल से रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। Which river of मध्य प्रदेश is known as गोल्डन रिवर? तो इनमें से कौन सी नदी सुनहरी नदी या गोल्डन रिवर के नाम से जानी जाती है मध्य प्रदेश में? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी बेतवा, या ऑप्शन डी केन। या जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सोन नदी जो है इसे गोल्डन रिवर भी मध्य प्रदेश की कहते हैं। अब इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हम इसे सोन रिवर को हम गोल्डन रिवर या सुनहरी नदी कहते हैं। तो सोन रिवर जो है ये निकलती है पचमढ़ी के पास में एक हिल रीजन से। तो यहाँ पे अपने साथ में ये सुनहरी कलर की रेत जो है वो बहा के लाती है। तो इसलिए अलग अलग हिस्से में ये जैसे जैसे बहती है तो यही जो रेत है वो अपने साथ में लेते हुए चलती है, तो इसलिए इसे गोल्डन रिवर
So next question is, boundary line drawn on map between India and China is known as option A Durand line, option B Radcliffe line, option C Park Strait, या option D मैकमोहन लाइन। तो चाइना और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन और किस नाम से जानी जाती है? या मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है, मैकमोहन लाइन। थोड़ा सा जान लेते हैं हम दुरंत लाइन के बारे में। अगर जाने तो हाल ही में काफी न्यूज में थी दुरंत लाइन, खासकर उस वक्त में तब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो रहा था। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, उसे दुरंत लाइन कहते हैं। उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है, उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1947 में बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था। तो उस वक्त में जो बाउंड्री लाइन दोनों ही साइड में इंडिया के ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की थी, वो दोनों ही रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी गई। उसके अलावा अगर हम पार्क स्ट्रीट की बात करें तो ये वो जल संधि, ये वो स्ट्रेट है जो कि भारत और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। वही मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना की बाउंड्री लाइन को कहते हैं। बाण सागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो आपको बताना है बाण सागर प्रोजेक्ट जो है इनमें से किस रिवर पर है। आपको ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है बेतवा, या ऑप्शन डी चंबल। इसका करेक्ट आंसर है सोन रिवर। सोन रिवर की अगर हम बात करें तो कई जगह आपको SONE भी देखने को मिलेगा, तो वो भी इसी का नाम है। कई जगह इसको NE भी पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। तो सोन रिवर पर बाण सागर प्रोजेक्ट जो है ये सिचुएटेड है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है आगर मालवा, ऑप्शन बी है उमरिया, ऑप्शन सी है दमोह, या ऑप्शन डी रायसेन। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी उमरिया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आगर मालवा की हमने बात करी। आगर मालवा जो है वन ऑफ द लेटेस्ट जो 51st डिस्ट्रिक्ट है MP का, ये है आगर मालवा। तो चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बढ़ते हैं। ताप्ती रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम? जैसे मैंने ताप्ती रिवर की बात करी, तो ये कहाँ से ओरिजिन इसका होता है? आपका ऑप्शन ए है बैतरवती, ऑप्शन बी है जनापाव, ऑप्शन सी है अमरकंटक, या ऑप्शन डी मुल्तई। सो इसका करेक्ट आंसर है मुल्तई। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यहाँ पे अमरकंटक आंसर दिया है। अमरकंटक जो है ये यहाँ से ओरिजिन होता है नर्मदा का। वही अगर हम देखें तो जनापाव जो है ये है चंबल का ओरिजिन पॉइंट। और इसके अलावा अगर हम बात करें बेत्रवती की, तो बेत्रवती बेतवा को ही बेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है। तो बेतवा का ही दूसरा नाम बेत्रवती या बेत्रवती है। सो एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं कौन चल रहा है आगे। तो सबसे आगे जो है ये है वर्तिका, वही सेकंड नंबर पे शिवम लीड कर रहा है, और थर्ड पे है ऋषभ। साथ में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ भी देखे तो यहाँ पे काफी अच्छा कंपटीशन है। तो अभी भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं।
जितने फास्ट और जितने सही आंसर आप देंगे उतने ही जल्दी लीडर बोर्ड में आप ऊपर आ सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड शिवम आप बोल मत देना मैम तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, मैम तैयारी अच्छी नहीं चल रही, लीडर बोर्ड पे तो ऊपर लगे हुए हो पूरे। हाँ, एंड ऑसम गाइज, वेरी गुड। So I'm hoping you're enjoying the quiz thoroughly. I am there side by side. I'm also listening. Okay, and good session going on. Good. Thank you, Khushwan. Carry on. All the best, guys. आगे बढ़ो। तो अभी जो हमारे हम सेकंड सेक्शन पे आते हैं जो कि लीगल स्टैटिक जीके के बारे में है। तो लीगल स्टैटिक जीके भी हम देख लेते हैं। तो लीगल स्टैटिक जीके का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हु इज द प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर कौन है? आपका ऑप्शन ए है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है कपिल सिब्बल, ऑप्शन सी है किरण रिजिजू, या ऑप्शन डी सदानंद गौड़ा। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है किरण रिजिजू की। अगर हम बात करें तो ये आते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश जिससे काफी रेयरली ही हमें कोई देखने को मिलता है, कैबिनेट मिनिस्टर है किरण रिजिजू। ये एक ऐसे लीडर रहे हैं जिन्होंने काफी कंसिस्टेंट इनकी यहाँ पर नाम रखा है और ये इंडिया की पॉलिटिक्स में काफी कंसिस्टेंट बने हुए हैं, खासकर ये गवर्नमेंट आई है तब से। पहले नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मिनिस्टर इन्हें बनाया गया था, उसके बाद में इन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी देखा, जहां पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम ओलंपिक्स में भी देखें तो ओलंपिक्स में जो इंडिया की मेडल टैली है उसमें कहीं ना कहीं इनके काम का ही रिफ्लेक्शन होता है। फिर वो भले ही टॉप स्कीम हो जिसमें जो हमारे एथलीट्स थे उनको तैयार किया गया था इस स्कीम के द्वारा मेडल्स के लिए, ये भी जो ब्रेन चाइल्ड था किरण रिजिजू का था। उसके अलावा अगर हम देखें तो इनके पहले रविशंकर प्रसाद, जो इससे पहले वाली एनडीए गवर्नमेंट थी जो 2014 में आई थी, उसमें रविशंकर प्रसाद जो थे वो लॉ मिनिस्टर थे। सो टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ एमपी हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट में टोटल कितने जजेस है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 62 या ऑप्शन डी 53। तो मुझे यहाँ पे उम्मीद थी कि मेजोरिटी ऑफ लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। हम एमपी जुडिशरी दे रहे हैं जो कि कंडक्ट करवाती है एमपी हाई कोर्ट। तो एमपी हाई कोर्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि कितने यहाँ पर जजेस है, कितनी इनकी बेंचेस है। एमपी एक ऐसा स्टेट है जिसके कैपिटल में बेंच नहीं है। एमपी हाई कोर्ट जो है, जैसे आपको मेजोरिटी ऑफ लोगों को पता ही होगा कि ये जबलपुर में है। इसके अलावा एमपी की जो दो और बेंचेस है, एक है ग्वालियर में जो कि नॉर्थ ऑफ एमपी जो है, जो चंबल रीजन है उसको कवर करता है। वही अगर हम बात करें दूसरी बेंच की तो ये बेंच है इंदौर में, इंदौर जो कि मालवा निमाड़ वाला एरिया कवर करती है। तो यहाँ पर भोपाल जो कि कैपिटल है एमपी का, वहां पे एमपी हाई कोर्ट की बेंच नहीं है। सो हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट? तो एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन है ये आपको बताना है। अब हम एमपी हाई कोर्ट की ही बात कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस कौन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए है कि जस्टिस संजय कुमार, ऑप्शन बी है जस्टिस रवि मालीमत, ऑप्शन सी है जस्टिस आर.वी. रविंद्रन और ऑप्शन डी सैयद रफत अलम जस्टिस। सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने करेक्ट आंसर दिया है। 13 लोगों ने यहाँ पे सही बताया है कि रवि मालीमत जो है, जस्टिस रवि मालीमत जो है, अक्टूबर से ये बने हुए हैं चीफ जस्टिस एमपी हाई कोर्ट के। स्टार्टिंग में ये एक्टिंग थे और ये रेगुलरली वर्क कर रहे हैं। तो अब काफी कम क्वेश्चंस बचे हुए हैं। जो लीडर बोर्ड में पीछे चल रहा है उनके लिए टाइम है
कि वो फास्टेस्ट आंसर देकर यहाँ पर लीडर बोर्ड में और ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि आप जितना फास्ट है यहाँ पे आंसर देते हैं आपको उतने ही पॉइंट भी मिलते हैं। हाँ, पर आंसर सही होना बहुत जरूरी है। So NV Justice NV Ramana takes over as the Chief Justice of India। तो ये कौन से नंबर के हमारे चीफ जस्टिस है ये हमें बताना है। का ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी 46 या ऑप्शन डी 49। तो करेक्ट आंसर है 48। 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हमारे जस्टिस रमन्ना है। Who is the present अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया के प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है? आपका ऑप्शन ए है सोनी सरब जी, ऑप्शन बी है के वेणुगोपाल, ऑप्शन सी है मिलिंद के बैनर्जी या ऑप्शन डी मुकुल रोहतगी। Yeah, so correct answer is के वेणुगोपाल। तो अब आते हैं हमारे हिस्ट्री वाले पोर्शन पे। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर हिस्ट्री की अगर हम बात करें या हम स्टैटिक जीके की भी बात करें तो ये केवल एमपी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसमें कुछ पोर्शन जो है वो आपको नेशनल इंटरनेशनल का भी मिलेगा। वैसे ही कुछ क्वेश्चन भी हम हिस्ट्री में कवर करने वाले हैं। So, who was the youngest revolutionary to be awarded death sentence? हमारे देश के सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र में किस क्रांतिकारी को, किस फ्रीडम फाइटर को यहाँ पे डेथ सेंटेंस हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, इनको केवल 18 की एज में, 18 ईयर्स की एज में फांसी की सजा हुई थी। वही हम भगत सिंह और सुखदेव थापर की बात करें तो यहाँ पर इन्हें फांसी की सजा हुई थी 23 साल की उम्र में। वही मंगल पांडे को 30 साल की उम्र में फांसी की सजा हुई थी। खुदीराम बोस की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट बंगाल से ताल्लुकात रखते हैं। Who was the Viceroy of India when the Rowlatt Act was passed? तो रॉल्ट एक्ट के टाइम कौन थे हमारे देश के वायसराय? सो लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड 1960 से लेकर 1916 से लेकर ये 1921 तक इंडिया के वायसराय थे और इन्हीं के टेन्योर में रॉल्ट एक्ट जो है वो पास हुआ था, जिसका बाद में काफी ज्यादा विरोध भारत में हुआ था। The Battle of Waterloo was fought between French and the वाटरलू की जो लड़ाई है वो फ्रांस और इनमें से किस देश के बीच हुई थी? आपका ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी ब्रिटिश या ऑप्शन डी जर्मन। या करेक्ट आंसर इज ब्रिटिश। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ जो कि है साइंस सेक्शन।
सो पार्किंसन डिसीज जो है वो बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है? पार्किंसन डिसीज रिलेट्स टू विच बॉडी पार्ट? आपका ऑप्शन ए है नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी रेनल सिस्टम, ऑप्शन सी सर्कुलेटरी सिस्टम, या ऑप्शन डी लिम्ब रिलेटेड डिसीज. Yeah, correct answer is nervous system. So हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, एक आखिरी मौका लीडर बोर्ड में आगे बढ़ने के लिए. ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज इनमें से किससे रिलेटेड है? आपका ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी वूल, ऑप्शन सी लिवर, या ऑप्शन डी हार्ट. यस, इसका करेक्ट आंसर है वूल. तो चलो देखते हैं अब आज किसने लीड किया है. वर्तिका, आपको बहुत बहुत कांग्रेट्स. फर्स्ट आई है वर्तिका ने, अपना लीडर बोर्ड पे अपना जो टॉप रैंक है वो कंटिन्यूस रखा है. शिवम, आपको भी बहुत बहुत कांग्रेट्स, आप सेकंड आए हो और तरुण थर्ड. All right, congratulations everyone. And Khushwant, if you can see on the screen, can you read out the names of all the people who are there on leaderboard? Second pay we have Shivam, third pay we have Tarun, fourth pay can you see? Fourth pay, sorry, I can't see. It's covered. Covered, it's covered. Yeah. I think it's Rishabh. Yeah, I think. All right, guys. But now, before you guys leave, I would love that you can, we would love if you can just leave a feedback in the chat box, please. All right, it will be great. And even if you want to speak something, then please, you guys can unmute yourselves and please go ahead and please give us some feedback in the chat box. We'd love to have it. Okay. Okay, Deepali. Next time I'll try new earphone. Okay, actually, I am way too excited while I'm speaking. So if I am being set as a benchmark, so thoda sa dikkat hoga. All right, guys. So please, we hope it was a good session for you all. All right, and that you learned something out of it. And these guys were the questions that included the most important previous year questions as well, that were repetitive in nature. And we also had the questions that have the tendency to be asked in this year's question paper as well. Okay, so please go through this. We will circulate the PDF of this with you guys, and by tomorrow we will get this uploaded on our Judiciary Prep channel as well. We'll get the links shared with you. Okay, so if you want to revise this with the video or something, so you can definitely get it. Okay, so yes, we hope, guys, that with this much of coverage, it should actually, I'm really sorry, guys. Okay, this is actually should cover all of this. We should be covering whatever is important for the exam. So I hope you are going to have great exam. Bilkul bhi panic nahi karna. Do not panic at all, guys. You are in such a good position. Trust me. Okay. So we are hoping that it was it gave you some benefit. And tomorrow, guys, you will have two new things in your hands. Firstly, will be a proper previous year questions compendium. In that, you will have approximately 170 questions from MP Static GK. So, up tak jitne bhi Static GK ke questions were asked in MP, they will be there in that compendium. One statement-based question, all right? So, this, the highest peak of MP is this. So, statement-based questions, I hope, you just go through them once. Okay? Yes, exactly. Static will be sorted after that, those 170 questions. Just go through them, just read. ऐसे जैसे जल्दी read करते हैं ना, ठीक है, just read through that. And other thing that you will have is, remember, we had circulated the MP local current affairs compendium with you for the whole 1 year. So we have a quiz, we are getting it prepared. So 40 questions will be there from that particular compendium. So even if you have not had the time to read that compendium, just go through those 40 questions. It might suffice a lot.
All right. So my last minute tips to you guys would be go through this quiz or this PDF once again. Go through those 170 previous year questions, guys. MP has huge tendency of repeating the questions. Okay. Next, remember the Nobel Prize compendium that we had shared. Go through the Indian winners for sure. Very limited. Every year, almost they're asking one question on the Nobel Prize winners. Okay, so go through the Indian winners from there. And other than that, the DGS compendium which we had shared, just go through the national news of that. I know step by step, if you would have done this, अब इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, ठीक है? Of course, Simran, we are planning on having these sessions on the regular basis for now, but at this time, we thought that let's just do whatever is possible for us to do for your exam, so that we can, do our best to give you the thing. Okay, our team will be working tomorrow as well, though it's an official off for others. Okay, but since it's your exam, so we'll be there for you guys. Okay, so ma'am, whatever you said, please text on WhatsApp group. हाँ, ठीक है. Dipali, tonight I will give you a list of what all to be read before the paper. All right, sorted. So I hope, guys, that you like the session and that you welcomed Khushwant with all the heart that you have done with me. And thank you so much, Khushwant. It was really a very, very intriguing session. Thank you so much. And actually, guys, it was not just these 29, 30 questions that he covered. Apart from that, so much other was also covered, right? So all the best to all of you. Do not panic. You are doing great. You will be doing great. अच्छा ही होगा. सब अच्छा होगा exam. ठीक है? मेरा खुद एग्जाम है कुछ दिन में, तो मैं तुम्हें क्या सलाह दे रही हूँ. So actually, जो मैं खुद मंत्रा यूज कर रही हूँ, I am giving that same to you as well. Okay? So now, please stay calm, take a good sleep now, ठीक है? And yes, somebody has to say something. थैंक यू सो मच मैम और सर, मतलब बहुत हेल्पफुल था. हम लोग भले लीडर बोर्ड पे नहीं आ पाए, बट हमने आज बहुत सीखने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा. See, I'll give you one thing, Aditi, leaderboard ka. I know, guys, tum jo leaderboard pe, I'm not talking about you, but I had given this example in my geography class also, that when I take some mocks, no, so there are some people who are scoring 200 up to 200, and I'm like, कौन है ये? कौन सी प्रजाति के इंसान होते हैं जो 200 में से 200 मॉक्स में लेके आते हैं? So never, exactly. So don't worry, ठीक है? Nothing to worry about. This was just a quiz, ठीक है? Maybe they had prepared more on this, but exam ke day pe you will be at the equal footing. That you can make sure till now also, right? You can revise this and you can be on equal at par with those who are there on the leaderboard. So exactly, you can do this, and hope you guys will not panic and your exam will go very, very great. Till then, we're all time with you, and almost I might not step back from saying 24/7 because someone from our team is working at some point of hour in the day. कोई ना कोई तो जागा मिलेगा आपको 24 घंटे में से, ठीक है? तो कोई डाउट है, कुछ भी है, you can tag me in the group, ask me personally, howsoever you like to. Okay, but just leave no stone unturned for your exam, guys. Okay, all the best. Take care. Good night, everyone. हाँ जी. Thank you, ma'am. मैम आपका एग्जाम है ना, वो क्या है? मेरा यूपीएससी का एग्जाम है 5 जून को. ओके मैम, मेंस है? अरे कहाँ मेंस होता तो मैं उड़ नहीं होती खुशी की मारे. प्रीलिम्स है अभी, so let's hope मेरा भी अच्छा जाएगा एग्जाम. Thank you, ma'am. All the best to you too. Thank you so much, guys. You all will be wishing for me, no? So I know it will be very good for me. Right? मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि ना यूपीएससी वाला वो करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लो मैम, क्योंकि यहाँ पे इतना सब कुछ आ रहा है ना, मतलब ये तो यूपीएससी लेवल वाली है, तो मुझे तो एमपी भी टारगेट करना है. मैं तो सोच रही हूँ कि सब टारगेट कर लूँ, कहीं पे तो तीर लगेगा. तो ऐसा होता ही है. So it happens, but then once we step into one exam, we generally tend to take similar or more exams for that. And if you feel like Noori, all the best to you. We're all there to help. No, ma'am, I'm not talking about UPSC. I'm talking about कि जहाँ हिंदी है और अपने स्टेट असम का, मैम सारे स्टेट को टारगेट कर लो, कहीं पे तो तीर लगेगा. See, if you think you can balance it out ना, बिल्कुल करो. अगर आप बैलेंस कर सकते हो तो क्यों नहीं, क्या जाता है देने में. और मुझे पता है वुमेन का तो फॉर्म भी फ्री होता है. मेरा तो फ्री था यूपीएससी का. तो आई मीन यूपीएससी का होता है मैम, जुडिशरी का फ्री नहीं होता शायद. ओके, कोई नहीं, उसके मुझसे ले लेना, ठीक है? बट जस्ट गो फॉर दिस. ओके, डू नॉट स्टेप बैक. महेंद्र सर और कोच गरिमा, कोच दीप्रित से एक बार टच में कर लेती हूँ कि गो फॉर भी लग जाए वहाँ पे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. टॉक टू गरिमा एंड दीप्रित, दे आर वेरी लाइक अमेजिंग. ठीक है, टॉक और महेंद्र सर से एक बार हाँ बात कर लेती हूँ कि डेफिनेटली सारे वोट्स में मैं पैर रखने वाली हूँ, मतलब कोई बात नहीं, कोई ना कोई वोट आपको रास्ते तक आगे तक पहुंचाई देगी, मंजिल तक. आई एम श्योर. All the best, ma'am. Thank you so much, guys, and thank you so much for wishing me all the best. इतने सारे लोगों ने मुझे विश किया है चैट बॉक्स में. It really means a lot, everyone. Thank you.
सर के लिए भी कुछ मैसेज है अगर देना चाहो तो। अरे बोलिए प्लीज, सर तो बैठे हैं यहाँ मैम पे। सर का वॉइस इतना अमेजिंग है, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब वो वॉइस ओवर एक्टर, वो डबिंग एक्टर होते हैं ना वैसा, मतलब टाइप का वॉइस, बहुत हैवी वॉइस है सर अभी हम की। बात करेंगे KGF 3 आएगी ना तो सर को दिलवा देंगे उसमें बिल्कुल। डबिंग का रोल। ठीक है, सही रहेगा ना? सही है मैम। Okay, yes, I know. We all admire his voice and his personality. Thank you so much once again, Khushwal. Excuse me, ma'am. जी मैम जैसे हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लासेस होती हैं, can you please take NP static GK वाली classes? अच्छा, MP static GK classes. Of course, we can plan on this. Actually, Vibhuti, a full plan for the static GK is being made in the team now, and very shortly, revamped notes, revamped classes, they will all come to you. Okay, so I'm really hoping that it's going to be a good one for you all, state-wise also. Okay. Ma'am, NP में is it like exclusive NP का ही पूछेंगे या बाहर का भी पूछ सकते हैं GK? I get it. So I am thinking I'll definitely propose to the team that we can have NP specific. Why I'm saying state specific classes. Ma'am, this was a question. कि She was सिर्फ asking, specific होगा या बाहर का भी पूछ सकते हैं? See, विभूति बाहर का भी आता है। प्रीवियस ईयर अगर पेपर्स देखोगे तो बाहर की चीजें कवर हुई है, इवन लाइक इंटरनेशनल भी कुछ है, वो थोड़ा पार्ट भी कवर करते हैं, बट इट इज वेरी जनरल। तो अगर आपने फॉलो किए हैं न्यूज़लेटर्स वगैरह तो यू आर आई थिंक एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जो नेशनल जनरल ट्रेंड न्यूज दैट वी कवर नो, तो वो आप कवर करते रहो टाइम बाय टाइम। अगेन आई एम सेइंग न्यूज़पेपर एनालिसिस, जस्ट फॉलो इट ऑन अ डेली बेसिस. I am very hopeful you'll not miss out on anything important being asked in the exam. Okay? Sure, ma'am. Okay. Thank you so much. All right, guys. Any other doubts? So you can. I said that you can ping me in the group, ping me personally or anytime. Exam se pehle I and my team are like fully, totally available for you guys. Okay, wherever, however we can help you. All right. So let's wind it up. And I think it's a very good way to finish the day. I hope my day is finished now. I have 5-10 minutes ka kaam more, but I'll not work now. And Kushwant, you also please take rest. You also guys sleep now. All right. So Anupam is also wishing everyone good luck, guys. Anupam is the person who makes the slides for the newspaper analysis, the whole structure bearer of the team. All right. So Kushwant, please, because you were the Sutradhar, you were the moderator of today's session, you please wind it up. I'll take leave now. Yeah, so thank you each and everyone जिन्होंने पार्टिसिपेट करा आज, जिन्होंने सही आंसर दिया उन्हें भी, और जिनका गलत हुआ उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलत चीजें हमें ज्यादा अच्छे से याद रहती है, बल्कि एक बार सही आंसर किया हुआ हम भूल जाए. So thank you so much for each and everyone for joining this session, and all the best for your exam. Thank you so.